کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذوالحج شریف کی دوسری رات نسبت سے رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، ایک سوال چلا ناخن کاٹنے کے حوالے سے، حجامت بنوانے کے حوالے سے، ان 10 ایام کے اندر تو ایک بڑی تعداد ہے جو ان 10 ایام کے اندر اپنے چہرے سے داڑھی بھی نہیں ہٹاتے ہیں، تو ذہن نصیب کہ ایسا کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مستحب کام پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 ذی الحجۃ الحرام ہوتی ہے اس کے فوراً ہی جو ہے لوگ اپنے چہروں سے داڑھی اتار دیتے ہیں، تو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کرتے ہوں لوگ تو واقعی تعجب نہیں ہے، اب یہ کہ یہ نیت ہے کہ میں عید کے بعد منڈوا دوں گا، تو اس کے لیے مستحب کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو پہلے حرام کی نیت کر رہا ہے۔ کوئی کام جو مستحب ہوتا نا یہ اس وقت تک مستحب ہوتا جب تک کوئی سنت نہ چھوڑے یا کوئی گناہ نہ کرے، تو یہاں تو گناہ کا پہلے سے ارادہ ہے، تاہم یہ اس کی مطلب یوں لگتا ہے کہ دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے اور شریعت سے محبت ہے، بے باکی نہیں ہے، یعنی یوں اب کرتا ہی ہے تو اللہ توفیق دے، تو جو ایسا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کرے اور پکا ہی داڑھی رکھ لے اور توبہ کر لے آئندہ، یعنی گزشتہ جتنی بار منڈائی گٹائی اسے توبہ کر لے۔ ایک قصہ ہوا کہ میں جانتا ہوں، انہوں نے وہ جشن ولادت کی خوشی میں چاند رات سے 12 دن کے لیے داڑھی مونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ داڑھی منڈاتے تھے زیادہ تر، اب وہ داڑھی منڈاتے کم ہیں، اب وہ فینسی داڑھی رکھتے ہیں، یہ بھی مطلب ذرا گناہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو رکھتے ہیں ایک مٹھی سے، طرح طرح کی وہ کٹنگ اور تراش خراش اور ڈیزائننگ داڑھی میں کر رہے ہیں، یہ سب مطلب ایسا نہ کریں، سب ان سے توبہ کریں۔ تو اس نے 12 دن کے لیے رکھی، بس وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے پوری رکھ لی پھر، اور ماحول میں بھی آئے، اور مطلب تو ایک دوست ان کا پرانا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ تمہارے اندر کیسے آئی ہے، وہ ان کو جانتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا ان کے کیا کیا مطلب کارنامے ہو، تو یہ جشن ولادت کی برکت یہ 12 دن، تو اب یہ کہ اللہ کرے کوئی اور بھی ایسی ہمیں مدنی بہاریں ملیں کہ بھائی وہ 10 دن کے لیے نیت تو خراب تھی کہ مونڈ دوں گا، لیکن 10 دن کے لیے رکھی تو اب بس میں نے رکھی۔ آقا کی جو سنت ہے اب اس کو کیا مطلب کیسے کاٹنا اور کیسے اس پر وہ کینچی چلے تو کیسے اس طرح چلے، آقا کی سنت کو سجانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کم از کم ایک مٹھی، ہاں ایک مٹھی کے بعد جو داڑھی کاٹی تو یہ سنت پر کینچی چلانا نہیں ہے،
बल्कि सुन्नत है कि कम कर दे। आला हज़रत ने इसको लफ्ज़ सुन्नत लिखा है इस पर। एक मुट्ठी के बाद भले काटते हैं, एक मुट्ठी से पहले, और फिर जो छोटी रख के मज़ीद डिजाइनिंग करते हैं, ये नहीं अच्छा, गलत 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 दर गलत सा ना करें। सब मेरे भाई तौबा करें और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसकी इतनी ताकीद है कि ये वाजिब है। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से घटाना, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो जो 10 दिन के लिए नियत की है वो भी, और जिन्होंने 10 दिन के लिए भी नियत नहीं की वो भी, अब वो पक्का ही आका की सुन्नत सजा ले कि अब तो कब्र में जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे। नाम मुस्तफ़ा पर गर्दन कटती है तो कल नहीं, आज नहीं, अभी भले कटे, आका की सुन्नत न कटे न घटे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, जिनकी नहीं आई, निकली नहीं है नियत, तो वो भी करेंगे तो सवाब मिलेगा, नियत का तो सवाब मिलेगा ना। जबकि दिल की नियत हो कि मैंने रखनी है और पक्की नियत हो। आपने माशाअल्लाह दाढ़ी शरीफ के ताल्लुक से इस्लामी भाइयों को बड़े प्यारे मदनी फूल दिए, नसीहतें फरमाई, अल्लाह करे अमल भी हो जाए। मगर वाला जो मैंने वाक़या बताया आप भी जानते हैं उनको जी, आपने एक दो इशारे कम दिए मजीद। अच्छा, अगर उन्हें भी अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ों ने हो सकता है कि ज़हन बना लिया हो कि नहीं यार सही फरमा रहे हैं, अब वो जो आसपास जो बैठे हुए होंगे ना, या जो भी घर पर हैं और ये यहाँ पर हैं, तो जैसे बच्चों की अम्मी हैं, इसी तरह अम्मी हैं, अब्बू हैं, तो ये जो अगर इनको भी कुछ कह देंगे, बल्कि अब्बू को भी कह दें, अब आप मना क्या करते हो, आप तो इससे ज़्यादा तो आपका भी इतना ही ज़रूरी है जितना इसका ज़रूरी है, अब आप भी बढ़ो, ये भी बढ़े आगे। तो ये जो मना करने वाले जो है ना, उनको भी अगर आप थोड़ा सा बयान कर दे तो हो सकता है काम हो जाए। ये भी है, हाँ वाकई आपने सही फरमाया कि मना करते हैं, तेरी ये उम्र है दाढ़ी रखने की। ये नौजवान जो रोज मर रहे हैं यार, डेली न जाने कितने नौजवान मरते हैं। ये स्कूटर हम जैसे बुढ़े नहीं चला रहे होते, जवान ही होते हैं, 15 साल 17 साल 18 साल। ताज़ियती पैगामात की मेरे पास तो लिस्टें आती है ना, इसमें 17 साल 20 साल 19 साल 18 साल के नौजवानों के नाम होते हैं कि ये एक्सीडेंट में फौत हो गया। और मैं कभी कभी रुक जाता हूँ अपने बयात बनाते मुझे ज़्यादा रहम आता है कि यार इस उम्र में बेचारा चला गया, और ख़ानदान में जो कोहराम मचा होगा वो अपनी जगह पर होगा, और माँ बाप की जो कैफियत हुई होगी यार, वो तो सब हम न लिखते हैं न इसको बोलते हैं। जो माँ गश खा कर गिरती होगी तो बेहोश होती होगी, तो बाप जो है उसका पता नहीं दिमागी तवाजुन भी कायम रहा होगा नहीं। जवान बेटा एकदम से चला जाए, एक तो बीमार पड़े 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 बिस्तर पर जाए, और एक अचानक हंसता बोलता निकला था, उछलता कूदता, और फिर उसकी खून में नहाई हुई लाश अगर आती है तो गुजरे क्या माँ बाप पर। तो ये रोज का मामूल है, मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ, इतने फौत होते हैं। ये स्कूटर जो है ना, ये सारी सवारियों में सबसे खतरनाक सवारी स्कूटर है, सबसे खतरनाक, और सबसे महफूज सवारी मानी जाती है हवाई जहाज। तो ज़ाहिर है वो गलियों में और ये हवाई जहाज तो नहीं चलता। एक बात बता रहा हूँ मैं मालूमात के लिए, तो स्कूटर, अब स्कूटर के बगैर गुजारा भी नहीं है, क्या करे आदमी। तो वो संभल के चलाना चाहिए, हेलमेट मजबूत वाला हेलमेट लेना चाहिए अच्छी कंपनी का, और फिर बांधना में ये बात खाली रख लेते सर पर फॉर्मेलिटी के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए। पुलिस तो बोले ना बोले, जब गिरेंगे तो पता चलेगा, पुलिस बचाने नहीं आएगी। हेलमेट ठक करके उछल कर गिरेगा, आपका सर जाएगा। तो इसमें फिर फौतियाँ भी अमवात होती हैं, जख्मी, या वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। तो बहरहाल ये कि सबको डरना चाहिए अल्लाह से। तो ये जो रोकते हैं ना दाढ़ी से या दीगर नेकियों से, वो ये सोचें कि इनको आप मौत से नहीं रोक सकेंगे। आप भी अपनी आखिरत की फिक्र करें, आप भी नहीं रखते, बच्चों को भी नहीं रखने देते। ये क्या उम्र है इसकी। तो इस देखो ना, मैंने बताया ना कितनी छोटी छोटी उम्रों में रोज फौत हो रहे हैं, हार्ट फेल भी हो रहे हैं। हाँ वाकई में बोलता हूँ, 18 साल 20 साल 22 साल के भी आते हैं मेरे पास नाम, जो हार्ट फेल हो गया। अल्लाह की शान है, बस हमारे लिए इबरत है, हम इबरत लेते नहीं है। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ये कुरान की आयत है कि आंखों वालों इबरत हासिल करो। हम नहीं समझते, किसी कोई लैंग्वेज नहीं समझते, पता नहीं क्या हो गया।
تو یہ یاد رکھیے کہ جیسے کہ کوئی داڑھی رکھتا ہے نوجوان بیٹا اور ماں روکتی ہے اس کو یا باپ روکتا ہے، یہ پتہ ہے کس کھاتے میں جا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ گستاخ رسول کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی، تو قرآن نے اس کے 10 عیب گنوائے، اس میں سے یہ بھی ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، چھوٹا نہیں بڑا روکنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو بھلائی سے نیکی سے روکنا یہ تیرا میرا کام نہیں، یہ ولید مغیرہ گستاخ رسول کا یہ کارنامہ، یہ کرتوت، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے نہیں آتے کہ مطلب ماں باپ اگر بلا وجہ نفل نماز سے نفل روزوں سے بھی روکیں گے تو وہ اسی آیت کے تحت آئیں گے، اسی طرح جو داڑھی سے روکیں گے وہ بھی اسی آیت کے تحت آ جائیں گے کہ یہ مناع للخیر والا کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسا نہ کریں، توبہ کریں، اور ہمیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کرنے، ان کے گستاخوں والے کام نہیں کرنے، اللہ اور رسول کے دشمنوں والے کام نہیں کرنے۔ ہمیں قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، یہ قرآن کہہ رہا تھا۔ اس بہترین نمونے میں آپ چہرے انور کا تصور کریں، داڑھی مبارک بھی ہے نا، ہمیں تو اس نمونے کی پیروی کرنی ہے، اس نمونے کی نقل کرنی ہے۔ ویسے امتحان میں اگر نقل کرنا منع ہوتا نا معیوب ہوتا ہے، اور یہاں جو نقل کرے وہی پاس ہے آخرت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل کرے، ان کی سنت کو جو اپنائے، ان کے پیچھے 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 چلے تو وہ پاس ہے۔ سرکار کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، تو یہ سب ان کی نقلیں جو کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جتنی عمدہ نقلیں کرے گا اتنے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوگا۔ ہمیں اللہ کرے نصیب ہو جائے، جذبہ مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قربانی کے لیے خریدا گیا جانور بیچنا کیسا ہے؟ بیچ کر کوئی زیادہ قیمت والا لینا چاہتا ہے کہ یار یہ 25,000 والا میں نے لیا ہے تو نہیں اپنے کو 40,000 والا لینا ہے، یہ بیچ دیا، اب مزید رقم ڈال کے 40,000 والا لے لیا، تو یہ صورت صحیح ہے۔ اب وہ 40 کا لے لیا سمجھو، اور اب بولے یار اپنے کو 25,000 والا لینا ہے، یہ تو بہت مہنگا لے لیا، تو اب اگر یہ بیچے گا اور تو 25-20 میں جتنے بیچے تو یہ کہ یہ اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچ گئے تو رکھ لے پیسے، یا 40 میں ہی بیچا 50 میں ہی بیچا، تو یہ جتنے بھی زیادہ رقم آئی اور جتنے کا بکرا لیا تو بکرا بھلے اس میں سے لے لیا، جو بچت ہوئی یہ بچت بھی اب یہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ کرنا ہوگا، جیسے جس کو زکوٰۃ دینا ہے تو ایسے کو وہ دے دے یہ رقم، اور توبہ بھی کرے، اس نے گناہ کا کام کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ اور جو فقیر ہوتا ہے شرعی فقیر، شریعت نے جس کو فقیر تسلیم کیا مانا، وہ تو اگر قربانی کی نیت سے جانور لے لے تو یہ تو بدل ہی نہیں سکتا، کسی صورت سے اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کی قربانی اس کو کرنی ہوگی۔ وہ تو جو غنی ہے یہ اس کے جس پر قربانی واجب تھی، یہ جو مسائل بھی بیان ہوئے تھے یہ اس کے مسائل ہیں۔ فقیر کا تو یہاں تک کہ زخمی ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، تب بھی اسی کی قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو یہ بدلی نہیں کر سکتا، غنی بدلی کرے یہ نہیں کر سکتا۔ غنی مانے ایسا شخص کہ جو صاحب نصاب ہو اور اس کی نصاب قرضے وغیرہ میں ڈوبی ہوئی نہ ہو، صاحب نصاب ہو جس پر قربانی واجب ہے، یہاں یہ مطلب سمجھو وہ غنی۔ زکوٰۃ اور اس میں فرق ہے تھوڑا، زکوٰۃ میں سال گزرنا ہوتا ہے، اور اس میں قربانی میں یہ کہ 10 ذوالحج شریف کی صبح صادق، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت سے لے کر 12 ذوالحج شریف، تیسری عید جس کو ہم بولتے ہیں، تو 12 ذوالحج شریف کے غروب آفتاب سے پہلے اگر یہ صاحب نصاب بن گیا،
समझो अचानक किसी ने इसको गिफ्ट ही कर दी कोई रकम, समझे, इससे ये साहिब निसाब बन गया, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुर्बानी का जिक्र जारी है और कुछ सवालात हैं, हम चाहेंगे कि अगर इसके जवाबात हमें से मिल जाएं तो चंद सवालात मैं आपसे कर लेता हूं। क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी की इबादत थी? जी हाँ, हर कौम में तरीका जुदा जुदा था। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है? जब से हुक्म नाजिल हुआ तो मदीना मुनव्वरा में 10 साल की मदनी जिंदगी में हर साल आपने कुर्बानी की है। क्या पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? सब घर वालों की तरफ से एक बकरा नाकाफी है, एक बकरा सिर्फ एक फर्द की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। बच्चों की तरफ से क्या वालिद के जिम्मे है कि वो कुर्बानी का जानवर ले आए और ज़बह करे? ना, बेटा या बेटी पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, क्या कुर्बानी उन पर भी वाजिब हो सकती है? कमाता हो या ना कमाता हो, जो साहिब निसाब है और कुर्बानी के शराइत पाए गए उसमें वाजिब होने के, तो अब कुर्बानी उसको करनी होगी। बुरे वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना क्या ज़रूरी है? जी नहीं। क्या फौतशुदा मरहूमीन का कुर्बानी में हिस्सा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। अगर वो हज करने गया तो क्या हज की कुर्बानी से वाजिब जो कुर्बानी थी वो अदा हो जाएगी? वो जो हज की कुर्बानी है ना, हज तमत्तो में, हज किरान में, तो ये शुक्रानी की कुर्बानियाँ हैं, हज के शुक्रानी की कुर्बानियाँ हैं। इसका ताल्लुक ये बकरीद की कुर्बानी से नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शर्त है कि वो हरम के अंदर हों। जो हज पर गए हैं और साहिब निसाब हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, तो क्या वो हज की कुर्बानी भी करेंगे और वो इनके पर जो दीगर कुर्बानी वाजिब है, ये दो क्या कुर्बानियाँ करेंगे? अगर वो मुसाफिर हैं, चाहे गनी है, मालदार हैं, तो इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और जो मुसाफिर नहीं, मुकीम हैं, मुकीम हो गए, यहाँ से गए और मुकीम हुए हैं वहाँ, तो इस पर कुर्बानी अगर ये साहिब निसाब है तो वाजिब हो जाएगी। अब इसकी फिर डिटेल है कि 15 दिन रात अगर वहाँ 15 दिन तक ये मक्का मुकर्रमा में रहने वाले हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी जो जाते हैं या इतने दिन पहले गए मगर मदीना शरीफ क्योंकि बेच देते हैं, तो अब ये कि इनका सफ़र तो रहता नहीं है फिर, लेकिन मसला ये कि 15 दिन अगर वहाँ ये रहेंगे मसलन मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में, तो इन पर कुर्बानी वाजिब होगी शराइत पाए जाने की सूरत में साहिब निसाब हो। लेकिन मक्के शरीफ में 15 दिन मिल तो रहे, लेकिन इस दौरान ये पता है कि ये बीच में मिना भी जाना है, अरफात भी जाना है, मुज़दलिफा भी आना है, तो ये इसका सफ़र टूट जाएगा। ये नियत करे तो भी इसकी नियत वैलिड नहीं है, जबकि गया हज के लिए कि अंडरस्टूड है कि इसको तो जाना ही है मीना शरीफ, अरफात शरीफ, तो अब इस पर अगर ऐसी सूरत हाल है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बीवी की कुर्बानी क्या शौहर की जिम्मेदारी है? जी नहीं। फकीर का कुर्बानी की नीयत से खरीदा हुआ जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो क्या हुक्म है? उस पर दोबारा वाजिब नहीं है कि नया जानवर खरीद कर कुर्बान करे, वो गया उसका। ठीक। अच्छा, फकीर से मुराद ये भिखारी नहीं है। भिखारियों बस तो बाज़ औक़ात बहुत माल होता है। शरीयत जिसको फकीर तस्लीम करे न, जो ऐसा शख्स, यहाँ यूं समझ ले आप कि ऐसा शख्स जो साहिब इंसाफ नहीं है, कुर्बानी के शरात पाए नहीं कर, ये वाजिब नहीं है इस पर, तो ये फकीर है। भले ना 50 लाख उसके पास है, लेकिन 60 लाख का मकरूज है, ये भले देता नहीं है लेकिन 60 लाख का कर्जा है इस पर, तो 50 लाख इसके बाद होने के बावजूद ये फकीर है। अगर ये अदा करता है तब भी 10 लाख मजीद इस पर तो कर्जा रह रहा है। कुर्बानी का सवाब ईसाल हो सकता है? जी हाँ, जब नमाज, रोजे, हज, रमजान शरीफ के रोजे, ज़कात, सबका ईसाल हो सकता है, यूँ कुर्बानी का भी ईसाल सवाब किया जा सकता है। क्या गरीब कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? अगर गरीब कुर्बानी करना चाहे तो इसके लिए है तो जायज, सवाब भी मिलेगा। अब कर्जा ले तो इसमें देख ले, अगर कर्जा अदा करने की नीयत है तो फिर भी कुर्बानी करे तो हो तो जाएगी। बेवा इद्दत में हो तो क्या कुर्बानी उस पर वाजिब होगी? बिल्कुल, अगर उस पर वो शराइत पाए जा रहे हैं तो इसका बेवा होना रुकावट नहीं है, कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, इद्दत में भी कुर्बानी की जाएगी। क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब होती है? नहीं होती, जिसको शरीयत मुसाफिर करार दे। हमारे यहाँ मदनी काफिले के मुसाफिर
कराची टू कराची भी ये सफ़र करते हैं ना, तो इनको कहते हैं ये मदनी काफिले में इसने सफ़र किया, तो ये मुराद नहीं है। शरई, जिसको शरीयत तस्लीम करे कि ये मुसाफिर है। जो गोश्त फरोश होते हैं उनको कुर्बानी के जानवर पूरा ये 3 दिन तक काटने पड़ते हैं, तो क्या वो तो इतने सारे जानवर काटते हैं, तो क्या इन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? अगर शराइत पाए गए तो इन पर भी वाजिब होती है कुर्बानी। तो ये 3 दिन के बाद करें? उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों। वक्त के अंदर ही करना होगा। अब जब इतने करते हैं तो एक पर छुरी फेरने में क्या देर लगती है? अगर किसी ने बकरा गिफ्ट किया तो क्या उसमें अपनी या किसी और की कुर्बानी की भी नियत की जा सकती है? अगर किसी ने बकरा गिफ्ट किया है आपको, तो आप मालिक हैं इसके। अगर वो कुर्बानी के लायक है तो किसी भी एक फर्द की तरफ से उसकी कुर्बानी हो सकेगी। जिसको बकरा गिफ्ट किया गया और अगर उस पर ही कुर्बानी वाजिब थी और उसने किसी और के नाम पर ये जानवर ज़बह करवा दिया, यानी कुर्बानी करवा दी, तो क्या उसका वाजिब अदा हो जाएगा? किसी की तरफ से कुर्बानी होने के लिए जानवर उसके मिल्क होना चाहिए, यानी वो जानवर का ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। और मिल्क होने के लिए या तो ये कि जानवर उसे हिबा यानी गिफ्ट करके उसका या उसके नाइब का, नाइब वकील या जिसको इसने कहा कि आप कब्जा कर लो, तो वो इसका वकील नाइब कहलाएगा, तो उसका कब्जा दिला दिया जाए नाइब का। या खरीदने से पहले उसके लिए खरीदने की सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल की जाए, यानी इजाजत हासिल कर ली जाए। सराहतन ये कि खुले लफ्जों में भाई मेरी तरफ से ले आना, या दलालतन कि अंडरस्टूड है कि ये मेरे लिए लाते ही हैं, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गए मेरा ये ले आएंगे, तो किसी तरह भी मतलब ये साबित हो कि ये इजाजत यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट मौजूद है, तो सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल कर दी जाए। या खरीदने के बाद उसे बेच दिया या बतौर फजूली उसकी तरफ से खरीद ले, उसकी इजाजत के बगैर खरीद लिया, और जिसके लिए खरीदा है वो बाद में कुर्बानी से पहले इस बै को नाफिज कर दे, यानी मतलब अच्छा अच्छा आपने खरीद लिया, सही है, मैं एग्री हूँ, लेकिन इस तरह उसने कबूल कर लिया इसको। बस अगर कोई अपने जिंदा पीर साहिब, दोस्त या किसी और अजनबी यानी अनजाने की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उसमें जरूरी है कि जानवर खरीदने से पहले उनसे इजाजत ले, खरीदने से पहले इजाजत ले। अगर खरीदते वक्त सराहतन या दलालतन इजाजत न ली, सराहतन या दलालतन इसकी खुलासा आगे में कर चुका, न बाय फजूली ताम हुई, यानी कि बगैर बोले इजाजत लिए खरीद लिया, यह भी खरीदारी मुकम्मल नहीं हुई, तो अब इनकी तरफ से कुर्बानी करने में यह जरूरी है कि जानवर हिबा करके यानी गिफ्ट करके उनको या उनके नाइब को कब्जा दिया जाए या इनको बेच दिया जाए, उसी को जैसे बेच दिया जिसकी तरफ से कुर्बानी करना चाह रहा है। अगर ऐसा ना किया और कुर्बानी कर दी तो पीर साहिब या दोस्त की तरफ से कुर्बानी ना होगी। अगर ऊंट या गाय के 7 हिस्सों में एक हिस्सा अपने जिंदा पीर साहब या दोस्त वगैरह का शामिल किया, लेकिन ना जानवर खरीदने से पहले उनकी इजाजत ली, ना वो हिस्सा बेचा, ना हिबा करके ना गिफ्ट करके कब्जा दिया, तो इस सूरत में किसी की भी कुर्बानी ना होगी, पूरी गाय जो है वो जाया हो गई। गोश्त हलाल है, इस तरह जो होता है इसमें ज़बा शरीर से गोश्त हलाल हो गया, कुर्बानी नहीं होगी। इसमें एक सवाल ये अर्ज़ है कि अगर वालिद अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है तो सिर्फ़ इजाज़त काफ़ी है या उसकी औलाद की भी मिल्क करना पड़ेगी वो कुर्बानी या बकरी या जो भी है, तो ये इरशाद फरमाइएगा। इजाज़त काफ़ी है। अगर किसी को बकरा तोहफे में मिला है और वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे बकरा तोहफे में मिला है, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर दूं, तो अब उसकी इजाज़त काफ़ी नहीं होगी, उसकी वो या तो उसको वकील करे या उसकी मिल्क करे या वो कब्जा करे, ये वहाँ के लिए, औलाद के लिए नहीं है। ये मिल्क करे में भी मुझे याद है कि मिल्क ये दूध समझते होंगे, हाँ, मिल्क मालिक बना दे, दूध, इन्हें मालिक बनाना पड़ेगा।
ओनरशिप यानी वो दोस्त आए या दोस्त के पास वो बकरा पहुंच जाए, वो इसको यानी कि इसकी जगह पर पहुंच गया और ये मतलब क्या है, मालिक बनने की सूरत पाई गई। हिब्बा उसी सूरत में ताम यानी पूरा होता है कि जब यानी कि अगला कब्जा कर ले उस पर, जिसको गिफ्ट दी गई, हिब्बा माने गिफ्ट, गिफ्ट दी गई, तोहफा दिया गया, वो कब्जा कर ले। खाली हाँ बोल देने से कब्जा नहीं होता है। तो ये कब्जा पाया गया, उसने किसी को भेज दिया कि इसको दे दो, तो इसको दे दिया। इस तरह भी मतलब है कि अभी ये वकील है कि मुझे मतलब ने भिजवा दो, तो अभी जब उसको ये देगा तो अब वो जब कब्जा करेगा तो कब्जा हो जाएगा। या और सूरत जो बताई मैंने कि या तो ये किसी को वकील कर दे, इसको आपने बकरे की ऑफर की, वकील बनकर वो बकरा लेकर उसको इजाजत दे दे के कुर्बानी आप कर दें। तो ये तोहफा देने वाला ये उसी को ना बोल दे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह मुझे इतना प्यारा, जैसे फोटो वोटो भेज दी उसको कि ये देखो ये ऐसा है, तो अब उसको मसला पता है, बोले यार मैं तो कहीं और हूँ, मैं तो कब्जा नहीं कर सकता, ना मैं किसी को जानता हूँ, यार आप मेरे वकील की हैसियत से कब्जा भी कर लो और मेरी तरफ से आप भले इसकी कुर्बानी कर दो, तो ये मुमकिन है। अरे उसको बोल दिया कि आप मेरी तरफ से इसको कब्जा कर लें, तो ये वकील कहलाता है, या नुमाइंदा भी बोलते हैं इसको। और मालिक यानी ऑनर, इसका ये ऑनर हो जाए तो यूं मतलब ये कि आप भले ये इसको बोल देगा आप कुर्बानी कर दो मेरी तरफ से या जिसकी तरफ से, अब ये कहेगा तो वो कुर्बानी करवा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है खरीदार और व्यापारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवेश। कब से ये काम कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं 8-10 साल से। आते ही कहते हैं दो दांत है। अब दो दांत से क्या मुराद है? लंबे ज्यादा हो, चौड़े ज्यादा हो, क्या? चौड़े भी होते हैं और बड़े भी होते हैं दांत। दो दांत जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा भी होते हैं दांत। तो उवैस भाई घर पे ले जाने के बाद एक दांत बाहर आ गया? नहीं, सुना तो खैर है, कभी ऐसा देखा नहीं हमने। नहीं ऐसा सुना है ना, सुना है तो ऐसा हुआ है। नकली दांत भी लगाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुना है, कभी देखा नहीं है सब नकली दांत हमने। जरा दांत देखने का शौक होता है बहुत सारे लोगों को। एक तो रेट को बेचने का शौक होता है सब। और दांत देखने का शौक होता है। तो वो जो तजुर्बाकार आदमी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये दो दांत नहीं है। अब वो उनका तजुर्बा बोलता है और वो साबित भी करते हैं कि ना वो दो दांत वाजे करने के लिए चार दांत को में से दो दांत को ग्राइंडर कर देते हैं, फाइल लगा देते हैं और दो दांत विजिबल कर देते हैं। तो ये भी धोखाधड़ी इस तरह की होती है। जी होती है, ये भी धोखाधड़ी 12 लाख करने वाले करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। किसी को बोले दिखा यार दो दांत है या चार दांत है, तो वो मुंह खोल के दिखाएगा तो वो जाहिर है नकली लगाया है, तो हो सकता है कि वहां तक पहुंचते बोलते एल्फी ने काम करना छोड़ दिया तो वो हाथ में आ गया, तो अब वो बेचारे की कुर्बानी गई। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसे दांत भी लगा के दे रहे हैं। आपने कभी दांत नहीं लगा के दिया? सींग लगा के दिया होगा कि सींग है ना, अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा नहीं करा। जानवर को मतलब है ना होता सूखा है, मतलब इतना जानदार नहीं होता, लेकिन उसको बेसन का पानी पिला देते हैं, लेकिन घर पे जाते हैं तो उसकी पूरी हवा निकल जाती है। होता है ऐसा, करने वाले करते हैं ये काम भी। ये अक्सरियत बकरों में ज़्यादा ही है। कुछ है ना बड़े जानवरों की बीमारियां, कुछ छोटे जानवरों की बीमारियां सेम होती है, अलग अलग होती हैं? सेम होती हैं इनमें। सेम होती हैं। अब मेरे जैसा आदमी आया और मुझे जानवर पसंद आ गया, लेकिन वो बीमार है, अब वो है ना वो बीमार जानवर भी दे देते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देने वाले दे देते हैं। बहरहाल कोशिश यही करते हैं, अगर मुंह को समाड़े में मुंह से भी आता है, पैरों से भी आता है। इसकी पैरों वाला लंगड़ा हो जाता है, मुंह से ही आता है, वो खाता नहीं है, तो इसकी कोशिश यही होती है कि सही करके बेचा जाए। समाड़े मतलब ये मुंह खोरी जो कहते हैं, मुंह खोरी की जो बीमारी है इसको। लेकिन मैं कैसे चेक करूं? ये आप ऐसे चेक करेंगे, देखें पीछे मुंह चला रहा है जानवर। जी जी। समाड़े वाला इस तरीके से मुंह नहीं चलाएगा। तो इसको च्युइंगम वगैरह खिलाई हुई है क्या? ये जुगाली कर रही है। अच्छा, खाना हजम कर रहे हैं अपना। अच्छा, और अब ये खुर का मसला कैसे हल करेंगे? खुर का वही है, लंगड़ा के चलेगा ये। अच्छा, सींग के बारे में अगर बात करें तो बाज लोग है ना खूबसूरती के लिए सींग काट देते हैं, और बाज लोग खूबसूरती के लिए है ना सींग लगा देते हैं, वो भी एल्फीज है। तो ये क्यों करते हैं? ये तकरीबन फैशन चल चुका है कि हम बगैर सींग का जानवर हो, खूबसूरती के लिहाज से। तो ये कैसे काटते हैं? ये कटे हुए आते हैं पंजाब से। जैसे नाखून कटने के बाद बड़े हो जाते हैं, सींग नहीं बढ़ते? कम से कम 2-2.5 महीने लगते हैं इनको सेट होने में। तो उसके सींग अभी तक नहीं निकले?
ये अब थोड़ी निकलेंगे ये, इनको आग की सेक लगा दी जाती है, तो उसकी चमड़ी को जलने का खतरा नहीं होता? जलती है ना तो फिर बंद हो जाता है, ये तो जब ये चमड़ी जल जाएगी तो सिंग फिर बढ़ेगा नहीं, या तेजी से नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, फिर बढ़ेगा ही नहीं। गब्बन कह लें, ग्यावन कह लें, तो उसका कैसे पता चले? उसका डॉक्टर बताते हैं। अवैध भाई कहते हैं कि उसके पेट पे हाथ फेरते हैं तो नहीं, ये तो सब ऐसे ही है, पेट पे वो नजूमी थोड़ी है, हाथ दिल को बहला रहे। हाँ, अच्छा, क्या हाँ ये तरीका है, राइज हो गया, मतलब ये तरीका नहीं है, डॉक्टर ही बता सकता है। यही बात। बाज़ जानवरों के नाक में नकील डालते हैं, तो ये क्यों डालते हैं? ये बस मारने की वजह से इनकी। तो ये तकलीफ दे मरेला नहीं है जानवर के लिए? तकलीफ तो है, तो ये मतलब वक्ती तौर के फिर न दल जाती है, उसके बाद सही है, कोई नहीं है। ना डाले तो? ना डालें तो उसका इशू भी नहीं, जानवर अगर ना सीधा है तो नहीं डालें उसके कोई। आपने बहुत सारी डिस्कशन सुनी और उस डिस्कशन में ये बताया गया कि जब जानवर का सींग काटा जाता है तो इसकी जो जड़ है वहां पर इसको जलाया जाता है ताकि दोबारा सींग ना निकले। अच्छा, डिस्कशन में एक और बात डिस्कस हुई, जब व्यापारी से जानवर लेकर जाता है खरीदार, तो उस वक्त उसको दांतों का इतना इल्म नहीं होता, तो वो कहते हैं कि 2 दांत है, आप ले जाएं। और जब वो घर पर पहुंचता है तो उसका या तो एक दांत नकली होता है जो आर्टिफिशियल तरीके से चिपकाया हुआ होता है, या वो पूरा 2 दांत का हुआ ही नहीं होता, बल्कि उसको 2 दांत का करने के लिए उसके बाकी दांतों को घिसा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने रेस किए, इसके अलावा व्यापारी और ख़रीदारी में मुख्तलिफ डिस्कशन भी हुई थी, उस हवाले से भी बताइए, और मेरे ये 2 क्वेश्चंस के बारे में भी बताइए प्लीज़ शेख, कि आखिर दुरुस्त क्या है? अल्लाह अल्लाह, ठगी तो खैर इसमें करते हैं लोग, करने वाले। यहाँ तक कि आपको सींग याद आया, दुम भूल गए आप शायद। दुम भी मैंने याद पड़ता खुद देखिए, दुम टूटी हुई गाय की, इसको एक टेक्निक से, मतलब वो कोई टेप वगैरह लगाकर उसके साथ सेट की हुई थी दुम। आदमी यूं करे तो हाथ में आ जाए दुम। तो इस तरह दांत भी नकली लगाने का मशहूर है, वो लगाते हैं लोग। तो सींग का भी अभी सुना हमने, और पता नहीं क्या क्या टेक्निक करते। एक बार हमने बकरा लिया, हम उठा के चले, अभी बकरा पीढ़ी ये जो बेवाशा के पास है, बाहर निकले, भी लेके चल रहे थे, तो बकरा एकदम बेचैन हो गया और रखा तो उसने दम तोड़ दिया। अब खुदा जाने वो क्या बीमार था और क्या पिलो कर उसको खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। हमने खरीद दिया और ये उसका टाइम पूरा हो गया था बेचारे का। तो ये तरह तरह का मतलब हिसाब किताब चल रहा होता है, और धोखा तो बहुत ही चल रहा होता है। ये बेसिन खिलाकर इसको मोटा तगड़ा करके और ये चला देते हैं। वजन से जो बकरे बिकते हैं, फार्मी बकरे, इसको भी इसी तरह का बेसिन और खिलाकर और वजन इसका वो फौरी तौर पर यानी कि वो बढ़ा देते हैं ताकि वजन में ज्यादा वेट है। तो इस तरह के धोखे के तरह तरह के अंदाज हैं। जहाँ जहाँ धोखा पाया गया, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये ज़हन में रखिएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कुर्बानी के लिए जानवर बेचें, चाहे शादी के लिए बेचें, या वैसे ही जानवर लोग, तो सारा ही साल इसका लेन देन चलता रहता है। धोखा गुनाह है, चाहे जानवर का कारोबार हो चाहे और किसी चीज का कारोबार हो, न चारे के लिए न रस्सी के लिए, हर चीज में जिसमें भी धोखा, तो ये गुनाह का काम है। तो अब ये कि सींग, इसके कैटल फार्म वाले ने बताया था एक बार कि इस तरह निकालते हैं कि तुम देख नहीं सकोगे। मुझे कहा, एक लड़के से भी मिलवाया था कि ये बड़ा माहिर है सींग निकालने में, वो अपनी टेक्निक से उसका ये सींग जड़ से निकाल देते हैं खींचकर, जिससे जानवर तड़पता होगा ना, तो इसीलिए होगा तुम देख नहीं सकोगे। वो बहुत तकलीफ के साथ निकालते हैं। फिर ये इन्होंने बताया ना कि सील कर देते हैं आग से ताकि निकले, दोबारा निकले ही नहीं। और बाजों के इतने तो सींग निकले हुए भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक आती होगी इसकी। ये जो मैंने बताया ये कराची का ही वाक़या है, तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि पंजाब से बन के आते हैं, कराची में भी होते हैं ना इस तरह के। तो ये और भी जगह जगह सिंध में भी होते होंगे, मुख्तलिफ शहरों में सींग निकाल देते हैं। ये खूबसूरती के लिए जानवर इससे खूबसूरत लगता है, और वरना बड़े बड़े सींग वाले बैल होते हैं, अब लोग उस पर हाथ नहीं रखते। पहले इनकी कुर्बानी करते थे लोग,
बड़े सींग वालों की, अब नहीं करते। अब ये एक ट्रेंड चला, अब जड़ से निकाल दिया सींग और इसको बंद कर दिया। कुर्बानी यानी कि ऐसे जिनके सींग निकले हुए और जख्म भी भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता। ये सारी तफसील हुई तो पता चला कि भाई इस तरह सींग निकलता है, तो ये कि कुर्बानी हो जाएगी। क्या भी इसमें बल्कि हुस्न पैदा हो जाता है जानवर में। फिलहाल हुस्न की ये यहाँ मतलब सूरत है हमारे यहाँ ये होता है। इसी तरह एक दांत वो नकली और वो खीरा था ना, खीरा बोलते हैं इसको, जो मतलब यानी कि 2 दांत का नहीं होता। पक्की उम्र तो ये 8 दांत में बोलते हैं, बूढ़ा हो जाए तो इसको पक्की उम्र गालिबन ये लोग बोलते हैं। तो अगर 2 दांत का है और एक दांत निकल गया और 1 साल बकरे का जैसे पूरा हो गया है, लेकिन एक दांत इसका अब निकल गया, यानी नकली दांत इन्होंने लगाया था। वैसे नकली दांत लगाएंगे क्यों? कुछ दाल में काला था, जब ये साल भर का नहीं होगा तो ही लगाया होगा। तो अगर ऐसी को सूरत सामने आती है तो ये पता चलता है कि साल भर का नहीं है बकरा, तो फिर कुर्बानी इसकी नहीं होगी। और दुम्बा है या भेड़ जिसके वो ऊन होते हैं, वाइट या रंगीन ऊन, तो ये जो है अगर 6 महीने का भी है, 6 महीने से छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चल जाएगा, लेकिन किस सूरत में चलेगा? 6 महीने का है लेकिन दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो दूसरे दुम्बों के साथ खड़ा है साल भर वाले, तो इनके साथ ये लगता साल भर का है तो तगड़ा है तो कुर्बानी होगी। और अगर साल भर का नहीं लगता, बच्चा लगता है, तब कुर्बानी नहीं होगी। और साल भर का पूरा हो गया, अब अगर किसी को बच्चा लगता है तो भले लगे, कुर्बानी हो जाएगी। एक दांत वैसे अगर निकल गया, वाकई एक दांत निकल गया और ये था पूरा साल भर का, तो इस एक दांत के निकलने से ये कि कुर्बानी के लायक वो रहेगा, कुर्बानी इसकी हो जाएगी। मगर देखे मकरूह हो जाएगी, यानी कि पसंदीदा नहीं है। बेहतर यह कि छोटा ऐब भी ना हो। तो एक दांत निकलने से ऐब पैदा हुआ, लेकिन ये वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी ना हो। निकलने की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं सर। में निकलना हमारे यहाँ 2 तरह का कहते हैं, एक तो किस सिरे से पैदा ही नहीं हुआ, निकले ही नहीं, और एक ही के पैदा हो के वो गिर गया, टूट गया। तो अगर निकला ही नहीं सिरे से तो क्या हुक्म है, और निकल के फिर टूट गया तो फिर क्या हुक्म है? वो टूट गया निकलने के बाद तो इसमें ऐब पैदा हुआ, एक दांत निकल गया, कुर्बानी हो जाएगी। और अगर निकला ही नहीं है, नहीं ये साल भर का ही नहीं है, निकला ही नहीं है, अब निकलने में भी जो मैंने जो मालूमात इकट्ठी की, इसी तरह के जो ये माहिरीन होते हैं इनसे, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो जानवर चरता है छुट्टा, तो वो घास खींच खींच के नोच नोच के खाता है। उसके जो दूध के दांत है ना अगले, ये जल्दी गिर जाते हैं, और साल भर से पहले ही 2 दांत वो दे देता है, तो यूं वो कुर्बानी के लायक नहीं होता, होता 2 दांत का है। और जो बंधा हुआ होता है, पकी पकाई खाता है, नोचने के लिए जाना नहीं पड़ता इसको, आप कमाई नहीं खाता, बाप कमाई खा रहा है, तो उसके दांत जल्दी नहीं निकलते। 1 साल से ऊपर भी 2-2 महीने वगैरह भी हो जाते हैं इसके, वो नहीं निकलते। यही हाल बड़े जानवर का भी है कि वो इस तरह टाइम लेते हैं। तो अब अगर वो 1 साल का कंफर्म हो गया है, कोई मुसलमान कह रहा है जिसकी बात पर अपने भरोसा हो रहा है, कोई दांत इसके नहीं आए 2, लेकिन मुझे पता है कि फुला तारीख को ये पैदा हुआ और फुला तारीख को साल हो गया है और अब ये इतने दिन इसके ऊपर हो गए बिलफर्ज, वो कहता है। तो अगर उसका एतमाद है कि वो आदमी सही है कहने वाला, तो फिर ये कि वो साल भर का समझकर उसको लिया जा सकता है। इसी तरह वो 2 दांत वाले भी तो मसला है ना, कि अगर वो चरते तो हैं जानवर और साल भर से पहले ही 2 दांत निकाल दिए, तो 2 दांत देकर हम तो खुश होकर ले लेंगे, लेकिन है तो नहीं साल भर का। तो यूं पेचीदगी बहुत है इसमें, इसलिए बेहतर और वो एहतियात की राय है कि 4 दांत वाला लिया जाए। 4 दांत को ये रेते से जो रगड़ते हैं ना, ये उनको रगड़ते हैं जो 4 या 6 दांत के हो जाते हैं ना, रेते से रगड़ कर ये छोटा करके बड़े जो दांत होते हैं ना, इसको नुमाया रखते हैं, तो आदमी समझे कि 2 दांत का है। कि अवाम की तो आप मतलब बस जो खोपड़ी में बैठ गया, इनके समय में 2 ही दांत आते हैं, 4 नहीं आते।
یہ دو دانت کا اس لیے یہ ان کو دھوکے دیتے ہیں کہ دو دانت کا الگ ہے، بہت زیادہ بہتر تھا 4 دانت والا، دیکھیے 2 دانت کا یہ اس طرح لیتے ہیں. یہ دھوکہ دیا، یہ گناہ گار ہے اس نے دھوکہ دیا، 4 دانت کو 2 دانت کر دیے. لیکن قربانی ہو جائے گی کیونکہ یہ سال بھر کا ہو گیا، شرائط پوری، اور کوئی اس میں وہ عیب نہیں ہے جس سے قربانی نہ ہو. اس طرح کی مطلب صورتیں ہیں تو اس میں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ احتیاط در احتیاط کہ اگر جگہ ہے، گنجائش ہے تو اپنا بکرا پالے آدمی، سارا سال اس کی خدمت کرے، اس کا بھی ثواب کمائے اور قربان کر دے. کیونکہ محبت بہت ہوتی ہے، جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. پیچھے پیچھے بھاگ کر آئے گا اور سر رگڑے گا اور دوڑے گا اور یوں اچھلے گا. اب اتنا اچھل کود کرنے والا بیٹے کی طرح پالتے ہیں لوگ، یا اگر مبالغہ کروں تو اب اس کو رائے خدا میں قربان کرنے کا موقع آیا. اس کا خون بعد میں نکلے گا، اس کے آنسو پہلے نکل آئیں گے محبت میں. یہ قربانی جو ہے نا میٹھا مدینہ، یہ اصل قربانی ہے. ہم لوگ بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں قربانیاں، یہ اصل قربانی ہے کہ جو نفس پر گراں گزرے، برڈن پڑے، اور اس میں اللہ کا حکم ہے خلاص قربان. یہ یعنی کہ ایک مدنی پھول آپ قبول کر لیجئے. جن کے پاس جگہ ہے اور جو اس کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگ پالتے ہیں تو پہلے سے نیت کر لیں گے تو یہ پہلے سے قربانی کا ہو جائے گا. اور مدینہ یہ خدمت کریں اور اس کے جو بھی آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، پوچھنا ہے کہ میرا بھائی پاکستان سے باہر رہتا ہے تو اس نے مجھے ایک مخصوص رقم بھیجی ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں کہ یہ قربانی کے لیے. تو میری رہنمائی فرما دیجیے کہ میں اس رقم کو کس طرح سے قربانی کے لیے کروں، کہ میں ان سے اجازت لوں یا وہ پیسے اپنے لیے مل کروا لوں، تو کیا طریقہ کار ہوا؟ کیونکہ انہوں نے تو مجھے رقم بھیج دی ہے کہ ایک بڑا جانور لے کے گھر میں کی طرف سے قربانی کر دی جائے. تو اس کے لیے میرے لیے کیا رہنمائی ہے، ارشاد فرما دیجیے. پیسے ہی بھیج دیے، قربانی کا آپ کو وکیل کر دیا انہوں نے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یہ بھی تو کہا ہے نا. تو اب یہ کہ آپ جانور اس رقم کا جو بھی بجٹ ہے اس کے حساب سے شرائط کے مطابق جانور لے لیں. اور قربانی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس ملک میں وہ ہیں اور آپ جہاں قربانی کریں گے جس ملک میں، تو دونوں ملکوں میں قربانی کا وقت ہو، اس وقت قربانی کریں گے تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مارخور بنیادی طور پر جنگلی بکری کی ایک بڑی قسم ہے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات خصوصاً چترال، گلگت، کوہ سلیمانی، غزر اور ہنزا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کی سینگ 4 فٹ تک بڑے ہوتے ہیں اور بلدار ہوتے ہیں. اس کی دنیا بھر میں 5 اقسام ہیں جن میں سے 3 پاکستان میں پائی جاتی ہیں: سلیمان مارخور، کشمیر مارخور اور استور مارخور. یہ جانور پاکستان کا قومی جانور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ مارخور کا گوشت کھانا کیسا ہے، اور کیا اگر کوئی اس کی قربانی کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ مارخور چونکہ جنگلی جانور ہے تو جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو جس نے قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ گوشت اس کا حلال ہے. البتہ یہ مسئلہ جو تھا وہ عرض کیا میں نے کہ اس طرح کے جانوروں کو شکار کرنا جو ہے نا یہ قانونی جرم ہوتا ہے. اس کے لائسنس وغیرہ جو بھی ہے وہ جب تک کارروائی پوری نہ کرے کوئی شکار نہ کرے. ہمارا قومی جانور ہے پاکستان کا. پاکستان کی قومی سبزی جانتے ہیں کون سی ہے؟ بھنڈی. قومی پرندہ ہمارا جو ہے وہ چکور. یہ چکور حلال پرندہ ہے. یہ پورا وہ فضاؤں میں نہیں اڑتا، یہ مرغی کی طرح یہ تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے، جمپ لگاتا ہے. اور یہ اپنے روڈوں پہ جو سفر کرتے ہیں نا اس میں نظر آتا ہے. چکور چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کبوتر جتنا، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. تتر اتنا ہوتا ہے. یہ بھی قومی پرندہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی قربانی کا جانور لے لیا اور اگر اس جانور کی ابھی قربانی نہیں کرنی ہے، ایک سال اس کو اور مزید پالنا ہے، اس کو ہم پالنے کے لیے رکھ کے اور دوسرا جانور قربانی کا لے سکتے ہیں؟ شرعی فقیر جو ہوتا ہے نا، جو جس پر قربانی واجب نہیں ہے نصاب کے اعتبار سے، مسافر مالدار جو ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن شریف فقیر نہیں کہلاتا ہو. تو یہ شریف فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے نصاب کے حساب سے،
تو اس نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس کو تو قربان کرنا واجب ہے، یہ تو اس کو رکھ نہیں سکتا دوسرے سال کے لیے، رکھے گا گناہ گار ہوگا، بلکہ یہ کہ یہ قربانی کا وقت نکل گیا تو اب اس کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا، زندہ اب ذبح کر کے اگر صدقہ کیا تب بھی مطلب یہ کہ جو ذبح کرنے کی قیمت میں کمی آئی، قیمت بھی ساتھ ملا کے صدقہ کرنا ہوگا۔ آئندہ سال اگر اس کی قربانی کرے تو پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، غنی ہے تو اگر اس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے اور اب وہ جانور چاہتا ہے کہ میں اس کو سال بھر اور تگڑا ہو جائے گا تو پال لیتا ہوں یا جو بھی وجہ ہو، تو اس سے بہتر دوسرا خرید لے اور اس کی قربانی کر دے، اس کی بھلے آئندہ سال کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، پیارے امیر اہل سنت، ہم ہر سال آپ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو آپ سے اجازت تو لینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہم آپ سے اجازت کیسے لیں؟ تو حضور آپ کے نام کی جو قربانی کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور ہم ہر سال اسی طرح حضور غوث اعظم کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا حضور غوث اعظم کی طرف سے بھی ہماری قربانی ادا ہو جائے کرے گی؟ حضور رہنمائی فرما دیں۔ غوث پاک کے طرف سے قربانی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اصال ثواب ہے، جب زندہ شخص کی طرف سے قربانی تو وہاں اجازت کے مسئلے ہیں۔ تو میں ابھی تک تو الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے وہ اجازت کی صورت اگر میری طرف سے قربانی تو میری اجازت ضروری، جو آپ نے کیا اگر اس میں نیت اصال ثواب کی تھی تو قربانی وہ اصال ثواب ہو گیا، قربانی آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوئی، لیکن یہ کہ اصال ثواب جو ہے یہ مجھے اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو مجھ سے اجازت لینے کی صورت واقعی یہ بھی مشکل ہے، تو آپ کا تو خوش نصیب ہے کہ آپ کی کال چل گئی ہے، اتنی کال آتی ہوں گی کس کس کی چلائے بیچارے، پھر بعد ہوں گے ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے، بعد ہوگا کچھ تو کوئی نہ کوئی بعد ہوگا خرابیاں ہوتی ہیں کال میں، وہ چلائی نہیں جا سکتی، چلے گی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو گڑ 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 لوگوں کو ریکارڈ کرنا نہیں آتا۔ وہ آج کل گرمی ہے نا تو کھڑ 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 پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس میں یہ بول رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر بولنے میں کیا بعض اوقات یہ یوں بولتے ہیں، اب یوں گولے بہت قریب کریں گے تو کوالٹی خراب ہو جائے گی، پنکھا چل رہا ہے کوالٹی خراب ہو جائے گی آواز کی، پھر آہستہ سے پھر بھی صحیح نہیں کرے گی، بالکل یعنی کہ وہ 120 کی اسپیڈ میں بھاگتے ہوئے 150 کی اسپیڈ میں آپ بولتے رہیں گے تب بھی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے مطلب بہتر کوالٹی صورت میں ہوگی پنکھا بند، آواز نہیں، میرے کو اتنی بعض اوقات کال بار بار سننی پڑتی ہے، یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، سوچ کا ہی نہیں پڑتا، اسکوٹر پر جا رہے ہوتے ہوں گے یہ بول رہے ہوتے ہیں، یا کار میں جا رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں تو ایک دم پیپ پھر گھر گھر، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتا ہے بعض اوقات، تو ایک سے زیادہ بار بھی سننا پڑتا ہے ضرورتاً۔ تو اس طرح کے یہ کہاں چلائیں گے یار، اور کیوں چلائیں گے اس طرح؟ تو ہمارے مطلب ناظرین جو نا آگے پیچھے ہو جائیں گے، نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جس کی صحیح ہوتی ہے کوالٹی صحیح اور الفاظ بھی واجبی سمجھ میں آنے والے تو یہ کالز چلتی ہیں، تو جن کی نہیں چلتی نا تو وہ دل بڑا رکھیں کہ اور اپنی خامی درست کریں، مدنی چینل والوں کو برا بھلا نہ کہیں کہ ہماری کال نہیں چلاتے، بھائی تمہاری ٹانگیں گی تو کیسے چلائیں؟ اتنے باکرامت نہیں ہے نا یہ کہ بغیر ٹانگوں کے بھی چلانا شروع کر دیں، جس کی کول درست نہیں ہو بغیر ٹانگوں کی ہے۔ دوبارہ لے کے اجازت کی تو صورت واقعی مشکل ہے، تو میرے ایصال ثواب کی نیت سے کر لیا کریں، ایصال ثواب تو سب کو کر سکتے، میرے پورے خاندان کو کر دیں، سارے اتاریوں کو کر دیں، سارے دعوت اسلامی والوں کو کر دیں، ساری امت کے لیے ایصال ثواب کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد خاتم المحققین قدس سرہ العزیز کی طرف سے کرتا ہے، اور اس کا گوشت پوست مانے کھال، اسکین، اس کا گوشت پوست سب تصدق کر دیتا ہے، غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں، اور ایک قربانی حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے، اور اس کا گوشت پوست سب نظر حضرات سادات کرام کرتا ہے۔
खाल भी सैयदों को और गोश्त भी सैयदों को। खुद फरमाते ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मजीद फरमाते आला हज़रत, और अब सुन्नत करीमा के इत्तिबा से ये नियत कर लिए कि इंशाअल्लाह ता बकाए जिंदगी अपने उन अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से कुर्बानी क्या करूंगा। आला हज़रत फरमा रहे कुर्बानी क्या करूंगा जिन्होंने कुर्बानी न की, खा गुजर गए हों या आइंदा आए। सब सुन्नियों की तरफ से आला हज़रत ने नियत की कि मैं भी ये सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी उम्मत से की, तरफ से की, तो मैं भी अब सुन्नियों की तरफ से करता रहूंगा। एक और मकाम पर फरमाते हैं कि माँ बाप की तरफ से बाद मौत कुर्बानी करना अजर अजीम है, इसके लिए भी और इसके वालिदैन के लिए भी। तो माँ बाप की तरफ से तो कुर्बानी करनी चाहिए, जो वफात याफ्ता हैं खासकर, भी बड़े सवाब का काम है। अच्छा, हालात जो ये गरीबों को बांट देते थे, सदका कर देते थे अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, तो ये आलाज़त का एक अपना फेल है, वाजिब नहीं है। अगर किसी मालदार को भी गोश्त दिया तो है जायज़, खुद भी इसको खाया तो है जायज़, ये ज़हन में रखिएगा। तो आला हज़रत ने जो नीयत अता फरमाई है कि मैं ऐसा करता रहूँगा, जैसे एक बड़ा जानवर कोई किसी के यहाँ है और उसमें से वो एक हिस्सा इस नीयत के मुतालिक कर दे कि ये जो एक हिस्सा है इसमें मेरी ये नीयत है, तो क्या इस नीयत पे ये जितनी ये इसने नीयत की है और जो आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने जो तरबियत फरमाई उसके मुताबिक उसको सवाब मिलेगा। तक़र्रुब इल्लल्लाह की नीयत हो ना, इस नीयत से जो भी कुर्बानी में हिस्सा होगा वो दुरुस्त होगा। अकीका है जैसे, कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह को तक़र्रुब इल्लल्लाह का काम कहलाता है कि अल्लाह के करीब करने वाला, तो ये अकीका इसमें हो जाएगा। किसी होटल वाले ने कहा कि मेरा हिस्सा रख दो, 7वां हिस्सा गोश्त चाहिए, तो अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये जो उम्मत के इसाले सवाब के लिए हिस्सा रखा गया, तक़र्रुब इल्लल्लाह का ये भी, तो यूं कुर्बानी का हिस्सा भी पॉसिबल तो है। आपने अभी रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से माशाअल्लाह मदनी पुल अता फरमाया, जो इस्लाम में रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद वक़्त बड़ी आवाज़ होती, गरगराटी होती है, शोर होता है, हारन बज रहे होते हैं, या आवाज़ साफ, ये बहुत ऐसी आवाज़ होती है कि उसको 4-4, 3-3 दफ़ा सुनने के बाद समझ आती है। बात तो इतने तेज़ बोलते हैं कि उसको 1.5 और 2 पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 पर ही 2 पर जा रहे होते हैं। तो ये भी बाद वक़्त इनका होता है कि वो इनकी स्पीड होती है, यानी बाद वक़्त वॉइस जो समझ में नहीं आ रही होती है और शोर बहुत होता है। तो हुज़ूर क्या हम उन्हें इनकी ही वॉइस दोबारा भेज सकते हैं कि बराए करम ये आप खुद सुन लें और मुझे वाज़े तो साफ़ वॉइस भेजें, क्योंकि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि अगर उसको शायद 2-3 दफ़ा इनकी वॉइस इस तरह हम रिपीट भेजेंगे कि यार करम कीजिए, तो हो सकता है कि आइंदा के लिए वो हमें भी और किसी और को भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कराते हुए सोचे कि यार मैं 1 मिनट की तकलीफ़ उठा लूँ, अगले को 5 मिनट की तकलीफ़ में डालने से बेहतर है। क्या फरमाते हैं? ये बस वो जज्बे की बात है। मैंने कभी कभी ज़रूरी होती है ना तो बोलता हूँ कि यार समझ में नहीं आ रही, बाकी सबको बोलने जाएंगे तो अपने बच्चे छाई बेली कब होंगे यार। ये मदनी चैनल के लिए फिर स्टाफ रखना पड़ेगा इसका, वो सबको बोलते रहे कि भेजो, फिर बोले कि भेजो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो प्राइवेटली बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमें जो आते हैं मैसेजेस बात होगा उसका तो कभी कभी ऐसा वो हर बार नहीं कर सकते यार। एक तो सुनना प्रॉब्लम होता है, बाजू का टाइम के मसाइल होते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियात ज़ाहिर होती है, खाली ये लेके थोड़ी बैठे होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं पैगामात, बहुत सारे पैगामात बाजूगात होते हैं। तो मैंने तो अपनी जहाँ नमाज पढ़ता हूँ ना, कुर्सी जा रखी है तो इसके साथ ही स्विच लगा लिया है, 2 वे रखा है, पंखा चल रहा होता है, तो वो बस वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर आमतौर पर मैं पंखा बंद कर देता हूँ, तो बगैर पंखे के मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि जिसको भेज रहा हूँ उसको बेचारे को समझ पड़े और अच्छी लगे आवाज़, मज़ा आए, उसको तकलीफ ना हो, ये कोशिश मैं करता हूँ। मैंने पूरे जो पैगामात रिकॉर्ड करता हूँ ना, कई मतलब मिनटों के, आधे घंटे के, पौन घंटे के, ऐसा कई बार मौका हुआ है कि बगैर पंखे के कमरा बंद करके गर्मी हो रही है और मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्वालिटी बनती है। अब ये कि
मैं बनाऊंगा और बेचारा उसको समझ नहीं पड़ेगी और मतलब परेशानी है ना। ये कोशिश करनी चाहिए हमें खैर ख्वाही की नीयत से कि उसकी दिल जोई होगी, उसको सहूलत होगी, ये करना चाहिए। गाड़ी भगा रहे हैं कड़ 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 पीप, अब इसमें आप बोल रहे हैं तो आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ आएगी नहीं। ये एहतियातें करनी चाहिए। हाँ, परिंदों की आवाजें भी बात होते हैं ना, तो ये भली मालूम होती है परिंदों की। ये भोंपों की आवाज में मजा नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है। वो सवाल ये है कि किसी ने पूछा है कि मेरी वालिदा इद्दत में है और उनकी इद्दत ख़त्म होने वाली है। सवाल ये है, वो कहते हैं कि इद्दत से उठने के बाद सुना है कि कहा जाता है कि मस्जिद में जाएं जब जाके इद्दत ख़त्म होगी, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि इद्दत से उठने का क्या तरीक़ा है। इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई तो अब उठे या ना उठे, इद्दत खत्म हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि अभी इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में रहते हुए उसका टाइम पूरा हो गया इद्दत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा ये पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।